اس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت و شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، آج ہم ساری عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر مقدس روزوں قیام میں سے گزرتے ہوئے چوتھے اتوار کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ آج کی جو پہلی تلاوت میں اس میں ہم داؤد بادشاہ کا سموئیل نبی کے ہاتھوں میں مسا کا ذکر سنتے ہیں کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو انسان کے خیالات، انسان کا عاقل ہونا ہے وہ خدا کی سوچ اور خیالوں سے بہت دور ہے۔ جس نگاہ سے خدا سوچتا ہے، خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان کے باطن کے دیکھتے ہوئے اسے پسند کرتا ہے۔ آج کی جو دوسری تلاوت ہے وہ قدس پولس رسول کے تو افسیوں کے نام میں سے لی گئی ہے کہ جس میں ہماری توجہ اس بات کی طرف دلائی جاتی ہے کہ ہم نور کے فرزند ہیں اور ضرورت اس بات اور عمل کی ہے کہ ہم میں وہ روشنی پیدا ہو اور وہ روشنی دوسروں کے لیے وہ راہیں استوار کرے، گامزن کرتے ہوئے گامزن کرے کہ جس میں وہ چلتے ہوئے ہمیشہ ابداً نور جو خداوند یسوع مسیح ہے اس پہ ایمان لاتے ہوئے آنکھوں کی شفافیت کے ساتھ دیکھنے والے بنے، اور اس بصارت کے ساتھ کہ جس کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس کا اقرار کرتے ہیں، اسی اندھے کی طرح کہ ہاں اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں، اور اسی کو پھر سجدہ کرنا۔ آج کی اس اقدسیو خرستی قربانی میں ہم خدا کے حضور دعا بھی کرتے ہیں اپنے تمام بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جن کا تعلق ہمارے خاندان و کلیسیا کے ساتھ ہے، خاندان زندگی میں بڑھائے گئے اور بے اولاد ہے، خاص جن کے نام التار پہ پیش کیے گئے، سیمی اور تانیہ کے لیے، سنیل اور منشا کے لیے، ناصر اور رسما کے لیے، فرمون اور کندیلا، عرفان اور مریم، شکیل اور فراح کے لیے کہ خداوند انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ ساتھ ہی ہم دعا بھی کرتے ہیں تمام بیماروں کی صحتیابی و تندرستی کے لیے، صبا، جاوید اختر، رخسانہ مقبول، اسلم اور عادت نذیر کے لیے کہ خداوند ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا کرے، ان کے ساتھ جسمانی بیماریوں سے رہائی بخشے تاکہ اپنے خاندان میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آئے ہم اپنی گناہگار زندگی پہ بھی دھیانوں اور غور و خوض کریں اور اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوتے ہوئے اقرار کرتے ہوئے اس عبادت میں شامل ہوں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ تمہاری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ ہم دعا مانگے۔ اے قادر مطلق خدا تو ایران کو ان طریقے سے اپنے کلمے کے ذریعے انسانی ذات کو شفا دیتا ہے، اپنی مسیحی قوم کو سرگر محبت اور پرجوش ایمان عنایت کر تاکہ وہ کامل شوق سے پاشکا کی عید منانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ ہم تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ ہمارے لیے کی پہلی تلاوت سیموئیل کی کتاب 16 باب 1 سے 6 7 سے 10 سے 13 ہے۔ ان دنوں میں خداوند نے سیموئیل سے کہا، تو اپنے سینگ تیر سے بڑھ اور آ کہ میں تجھے بیتلہم کے یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنے لیے بادشاہ ٹھہرایا ہے۔ تب سیموئیل نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا اور بیتلہم میں آیا، اور اس نے یسی اور اس کے بیٹوں کو پاک کیا اور انہیں قربانی پر بلایا۔ جب وہ آئے اور اس نے الیاب کو دیکھا تو اپنے دل میں کہا
यकीनन ये खुदा का मंसूब इसके सामने आया। पर खुदावंद ने शमूएल से कहा कि तू उसकी शक्ल और उसके कद की लंबाई का लिहाज न कर, क्योंकि मैंने उसको नापसंद किया है। मैं इंसान की शक्ल के मुताबिक फैसला नहीं करता हूँ, इसलिए कि इंसान उन चीज़ों को देखता है जो नज़र आती है, लेकिन खुदावंद दिल की तरफ देखता है। तो यस्सी ने अपने सातों बेटों को शमूएल के सामने पेश किया। तो शमूएल ने कहा, उनमें से खुदावंद ने यस्सी किसी को पसंद नहीं किया। फिर शमूएल ने यस्सी से कहा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? तो उसने कहा कि सब से छोटा बाकी है और वो भेड़ बकरियां चराता है। तो शमूएल ने यस्सी से कहा, आदमी भेजकर उसको हमारे पास लाए, खुदावंद, क्योंकि हम दस्तरखान पर न बैठेंगे जब तक कि वह यहाँ पर न आ जाए। तब उसने बुला भेजा और वो उसको लाया, और वो सुर्ख रंग, खुश चश्म और देखने में अच्छा था। तो खुदावंद ने कहा, उठ उसको मसा कर, क्योंकि ये वही है। तब शमूएल ने भेड़ का सींग लेकर उसके भाइयों के दरमियान उसको मसा किया। तो दिन से आगे को खुदावंद का दाऊद पर नज़र हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। मगर अब खुदा में नूर हो, तो नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की खूबी और दस्तयाबी और खुशी में है। तो मालूम करते जाओ कि खुदावंद को क्या मंजूर नज़र है। तो तरीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि बेशतर उनमें मालूमात ही किया करो, क्योंकि उनके खुशीदा कामों में जिक्र भी करना शर्मनाक बात है। तो सब बातें जो मालूमात के लायक हैं नूर से जाहिर होती हैं, क्योंकि नूर सब कुछ करता है। इसलिए कहा जाता है कि सोने वाले जागो और मुर्दों में उठ, तो मसीह तुझ पर रोशन होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदा की खास So
9वें बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा से लेकर। और उसने गुजरते हुए शख्स को देखा जो पैदाइशी अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, रबी, किसने गुनाह किया था, इसने या इसके माँ बाप ने, कि ये अंधा पैदा हुआ? यसु ने जवाब दिया, ना तो इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, लेकिन ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इसमें जाहिर हूँ। वाजिब है कि मैं जब तक दुनिया है, जब तक दिन है, उसके काम करूं। जिसने मुझे भेजा है, वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी गूंदी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाई और उससे कहा, जा सलवाम के तालाब में धो। बस वो गया और धोया और बीना होकर लौटा। बस हमसाए और जिन जिन लोगों ने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा हुआ भीख मांगा करता था? बाज ने कहा, ये वही है। बाज ने कहा कि नहीं, बल्कि उसका कोई हमशक्ल है। उसने खुद कहा, मैं वही हूँ। तब वो उससे कहने लगे, फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यसू है, मिट्टी गूंदी और मेरी आंखों पर लगाई और मुझसे कहा कि सलवाम के तालाब में जा और धो ले। बस मैं गया और धो लिया और बीना हो गया। और उन्होंने उससे कहा कि वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। लोग उस शख्स को जो पहले नाबीना था फरीसियों के पास ले गए। जिस रोज यीशु ने मिट्टी लगाकर उसकी आंखें खोली थी, वो सबत था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा कि उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और मैंने धो लिया और मैं बीना हो गया। तब फरीसियों में से बाज ने कहा, यह शख्स खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सब्बत को नहीं मानता। मगर औरों ने कहा कि गुनाहगार आदमी ऐसे करिश्मे क्यों कर दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने उस नबीना से फिर कहा कि जिसने तेरी आंखें खोली तो उसके हक में क्या कहता है? उसने कहा, वो नबी है। मगर यहूदियों ने ये बात सच ना जानी कि ये अंधा था और बीना हो गया है, जब तक कि उन्होंने उस शख्स के माँ बाप को जो बीना हो गया था ना बुलाया और उनसे पूछा कि क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था? फिर वो अब क्यों कर देखता है? उसके माँ बाप ने जवाब में कहा, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और ये कि वो अंधा पैदा हुआ था, लेकिन ये हम नहीं जानते कि वो अब क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली हैं। वो पूरी उम्र का है, उसी से पूछो, वो खुद अपना हाल बयान कर देगा। ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा था, क्योंकि यहूदियों ने एक कर लिया हुआ था कि जो कोई इकरार करे कि वो मसीह है, वो इबादत खाने से निकाला जाए। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा, वो पूरी उम्र का है, उसी से पूछो। तब उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था फिर बुलाकर उससे कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम जानते हैं ये शख्स गुनाहगार है। बस उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब बीना हूं। तब उन्होंने उससे कहा, उसने तेरे साथ क्या किया? किस तरह तेरी आंखें खोली? बस उसने उन्हें जवाब दिया, मैंने तुमसे अभी कहा और तुमने ना सुना, तुम फिर क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? तब उन्होंने उस पर लानत की और कहा कि उसका शागिर्द हो, तू उसका शागिर्द हो, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर हम नहीं जानते कि ये कहाँ का है। उस शख्स ने जवाब दिया और उनसे कहा कि ये ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, और हालांकि उसने मेरी आंखें खोली हैं। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता,
لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے پیدائشی اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا تھا۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، تو سراسر گناہوں میں پیدا ہوا اور کیا تو ہمیں سکھاتا ہے؟ تب انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جب اس نے اسے پایا تو اس سے کہا، کیا تو ابن انسان پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اے خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے بات کرتا ہے وہی ہے۔ اس نے کہا، اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ تب یسوع نے کہا، میں فتویٰ دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ وہ جو نہیں دیکھتے ہیں دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں اندھے ہو جائیں۔ اور فریسیوں میں سے بعض نے جو اس کے ساتھ تھے یہ سن کر اسے کہا، کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم اندھے ہوتے تو تم گناہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب تو تم کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ اس مومنین، آج جب ہم ساری عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر مقدس روزوں کے ایام میں سے گزرتے ہوئے چوتھے اتوار کی عبادت میں شامل ہو رہے ہیں، تو آج کی تلاوتیں ہماری توجہ جو اشعیاء نبی کے 55 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت مقدسہ ہے، ان کا آج کی تلاوتوں کا خلاصہ اور مختصراً جو تفسیر ہے وہ اس پیشن گوئی کی طرف جھلکتی ہے، لے کے جاتی ہے، اور اس بیان کی طرف کہ جس میں کلام اقدس میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جیسے افلاک زمین سے اونچے ہیں ویسے ہی میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیالات تمہارے خیالات سے بلند ہیں۔ اس آیت مقدسہ اور آج کی تلاوتوں کو جب ہم ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو شاید یہ اخذ ہوتا ہے کہ یہ آیت مقدسہ آج کے اتواروں کی تلاوتوں کا خلاصہ شفافیت کے ساتھ بیان کرتی ہے، لیکن اس مسئلہ سے پہلے چند یعنی کہ وہ باتیں ہیں کہ جس میں انسانی سوچ کی بالادستی جو ہے وہ نظر آتی ہے، کہ انسان اپنی سوچ کی سربلندی، اپنی عقل کی جو عقل ہے یا ذہانت ہے یا خیال ہے یا اس کا فہم ہے یا وہ علم جو اس نے سیکھا ہوا ہے تجربات سے، دوسری طرف جو خدا کے خیالات ہے، جو خدا کی سوچ ہے، جو خدا کی پسندیدگی ہے، خدا کی مرضی ہے، خدا کی خواہش ہے اور خدا کا چناؤ ہے، وہ انسان کی سوچ، انسانی عقل کے ادراک اور علم سے جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو میں نے اپنی امت کی بادشاہت کے لیے بلایا ہے، بلکہ پھر خدا فرماتا ہے کہ اس کو جو داؤد ہے یسی کا بیٹا سموئیل نبی کو اس کو مسا کر، کیونکہ اسے میں نے پسند کیا۔ اور خدا جو ہے وہ انسان کے جس طرح کلام اقدس میں مرقوم ہے کہ دلوں کو جانتا ہے کہ جب تو اپنے شکم مادر میں شکل اختیار کر رہا تھا، اور یہ خدا کا چناؤ، خدا کی مرضی، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان کی بصارت کے آگے سے وہ جو دنیاوی خواہشات ہیں، دنیاوی سوچیں ہیں، دنیاوی خیالات ہیں، ان سے پرے ہو کے ایک طرف ہوتے ہوئے جو ہے وہ خدا کی پہچان کرے۔ اس انجیل مقدس کا جو مقدس یوحنا کی انجیل سے آج لی گئی ہے کہ جس میں شفائے نبینا، ہم بھی اکثر اوقات
अपनी इस जिंदगी में जो हम समझते हैं कि हम साफ और शफाफियत के साथ देखते हैं, इसके बावजूद हम गुनाहों में गिरते हैं। जो आज के इंजील मुकद्दस में आखिरी आयत मुकद्दसा में कि जब फकीह और फरीसी, जब खुदा यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया हूं फतवा देने के लिए ताकि जो देखते हैं वो ना देखें और जो नहीं देखते वो देखना शुरू कर दे। तो फकीह फरीसी कहते कि हम भी अंधे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम ये कहो कि हम आंखें रखते हैं और आंखें रखते हुए भी गुनाह ही करते जाओ, तो फिर तुम्हारा गुनाह जो है वो कायम है रहा। तुम तो कहते हो कि हम देखते हैं, हमारी बसारत काम करती है, हम तो आईने में धुंधला सा नहीं देखते बल्कि शफाफियत के साथ देखते हैं, फिर भी तुम वही काम करते हो, फिर भी तुम्हारा चाल चलन भी वही है, फिर भी तुम्हारा किरदार भी वही है। लेकिन अगर सब कुछ देखते हुए भी तुम अपने चाल चलन से, अपने किरदार से, अपने बुरे अमाल से बाज नहीं आते, तो फिर तुम्हारा गुनाह जो है वो कायम न रहा। अगर हम जिस्मानी बसारत की बात कर लें, इस चीज को अगर देख ले, सोच ले, तो ये तो जाहिर है कि जो शख्स जिसको हमारी सोच और ख्याल के मुताबिक जिसको नजर नहीं आता वो अंधा है, वो दुनिया की जो ये सारी ऐशो-इशरत है, दुनिया की खूबसूरती है, वो उनसे ना वाकिफ है, उसके लिए तो अंधेरा ही है। लेकिन जो आंखें रखते हुए भी उनका अंधेरे के कामों की तरफ जाते हैं, उनके लिए जो गुनाह है वो कायम। आज की जो तलावतें हैं उनमें एक जो लक़ब फर्जंदों के लिए इस्तेमाल किया कि तुम नूर के फर्जंदों, और नूर के फर्जंदों का जो चाल चलन है वो ये है कि जिस तरह ये सोने वाले जागते हैं, और कलाम अक़दस में दूसरी तलावत में कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह तुझ पे तलू होगा। अपनी तारीकी के कामों को तरक करके, अपने गुनाहों को तरक करके, इंसानी सोचों और ख्यालों को तरक करके जब यीशु की पहचान करनी है, तब जाके हम ईमान की बसारत के साथ जो है उसका तजर्बा कर पाएंगे। तब हम दूसरों के लिए गवाह ठहर सकते हैं कि हाँ, मसीह ने मुझे छुआ, मुसन्दे की तरह कि उसने बारहा उसका इकरार करके उस यीशु ने मुझे शिफा दी है। यीशु ने, मुझे नहीं पता, मैं इस बात से आगाह नहीं हूं, लेकिन वो उसने मुझे जब शिफा दी है तो मैंने ईमान की बसारत से उसे पहचान लिया। फिर दूसरों के लिए भी कि क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? मैं तो ईमान ले आया हूं, मैंने तो सच जान लिया, मैंने तो यकीन कर लिया है कि ये अल मसीह है, यही इब्ने खुदा है, यही इब्ने इंसान है, यही कलमा है और यही खुदा का जौहर है। मैंने तो सच जान लिया है, क्योंकि आम इंसान ऐसे मोजज़ात नहीं कर सकता जब तक वो उसकी तरफ से भेजा ना गया। अजीज भाइयों और बहनों, हम अपनी जिंदगी में इस बात का जो है वो ख्याल करें, सोचें अपनी जिंदगी कि हम भी इस आज जिंदगी में रहते हुए कहीं ना कहीं पे ऐसी गलतियां और गुनाह कर बैठते हैं कि शायद आंखें रखते हुए भी हम नहीं देखते। लेकिन कलाम अक़दस हमारी रहनुमाई करता है कि हम उसकी पहचान करें। वो बारहा हमारी जिंदगी में मोजज़ात करता है। वो बारहा, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो सांसें हैं, ये दिन देखना जिंदगी सबसे बड़ा मोजज़ा है। आप जिंदा हैं, इससे भी और बड़ा मोजज़ा है। बाकी जिंदगी में मोजज़ात होते हैं, जिंदगी खुद बजाते खुद ही बहुत बड़ा मोजज़ा है। आप जिंदा हैं, ये दिन आपने देख लिए, सुबह देख लिए, दोपहर देख ली, शाम देख ली, यही सबसे बड़ी बात है। बाकी बीमारियां, कमजोरियां, दुख, परेशानियां,
ये जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी को खूबसूरत भी बनाती है, जिंदगी में पुख्तगी बख्शती है, जिंदगी में और ज्यादा जिंदगी को खूबसूरत बनाने में और यीशु को जिंदगी के देने वाले मंबा हयात को जानने में मदद देती है। ये जो सारा कुछ हम महसूस करते हैं, ये उस जिंदगी के मंबा हयात को जानने की तरफ हमारी तवज्जो दिलाती है कि हम अगर कमजोर हैं तो उससे मांगे, हम अगर बीमार हैं तो उससे कहें, हमें अगर किसी चीज की जरूरत है तो उससे कहें, अगर हम नापाकी में भी है तो वो पाक खुदा है, बदी को जो उसकी आंखें वो देख नहीं सकती है, वो यकीनन हमें वो पाक भी करता है, यकीनन हमें उठाता भी है, यकीनन हमारी मदद भी करता है। तो ये जो मुकद्दस रोज़ों के अयाम है, इस बात की तरफ हमारी तवज्जो मरकूज़ व मबज़ूल करवाते हैं कि हम अपने उन तारीकी के कामों को जो जिस्मानी है, जो जिस्मानी ख्वाहिशात है, उनको तरक करके हम खुदावन की तरफ जो है वो लौटे, और खुदावन हमें ऐसा करने और बढ़ने का फजल बख्शता रहे ताकि हम हमेशा वो नूर के फर्जंद बने कि जिनसे उसका जलाल जाहिर हो। मसीह खुदावन के वसीले से आए हम सब खड़े के अपने ईमान का इकरार करें, रसूलों का अकीदा। उसके हल में दुख उठाया, मसरूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, आखिरत में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का आदमी मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की दावत के जाने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। दुआ भी करते हैं बाबा जिंदगियों के लिए कि मेहरबान खुदा तंदुरुस्ती से याबी से नवाजी। अजीजों दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम खुदा के हुजूर दुआ भी करते हैं तमाम बीमारों के लिए, खासकर जिनके नाम तार पे पेश किए गए हैं, सभा के लिए, जवेद अख्तर के लिए, आदर नज़ीर के लिए, और खास हम दुआ भी करते हैं भाई असलम के लिए भी कि खुदाबंद खुदा उन्हें तंदुरुस्ती और सेहतयाबी से नवाजता रहे। अजीजों दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आप भी अपनी दुआएं खुदा के हुजूर पेश कर सकते हैं। हम आज इल्तिजा भी करते हैं आज के पाक कलाम के लिए जो हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों में बोया गया, कि मेहरबान खुदा आज की पाक कलाम की बरकत हमें अता करे ताकि हम इसके मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करने वाले बन सकें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम तमाम दुखी मुसीबत ज़दा लोगों के लिए दुआ करते हैं जो तरह तरह की मुश्किलात और परेशानियों में मुब्तला हैं, कि खुदा उन्हें रहाई अता करे, खुशी और शादमानी बख्शे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम अपने नौजवानों के लिए दुआ करते हैं जो बेला रवि के शिकार हो चुके हैं, कि मेहरबान खुदा उन्हें अक्ल दराई हिकमत बख्शे, शैतान के नापाक इरादों से उन्हें बचाए, ताकि वो राह रास्त पर आकर अपने घरानों और ख़ानदानों के लिए खुशी और शादमानी का स्वाब करें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम इल्तिजा भी करते हैं तमाम लोगों के लिए जो बेऔलाद हैं, कि खुदा उनकी फरियादों को सुने और उनको औलाद की नेमत से ममूर करें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें।
فائدہ کے لیے منظور فرمائے. دعا مانگے. خداوند ہمارے خدا، ہم یہ ہدیے جو ہمارے عبد نجات کے وسیلے بنیں گے خوشی کے ساتھ تیرے حضور لائیں. ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ یہ عطا کر کے ہم پورے بھروسے سے ان پاک چیزوں کا احترام کریں اور دنیا کی نجات کے لیے یوکرست عبادت کو لائق طور پر عمل میں لائے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے. آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آپ کے ساتھ بھی ہو. ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں. ہم دھیان لگاتے ہیں. خداوند اپنے خدا کا شکر کریں. یہ واجب اور درست ہے. یہ بات کہ واجب و نہایت مناسب ہے قدوس پاک کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں. جب بڑے انسان تاریکی میں چلتے تھے تو اس نے انسان بن کر انہیں ایمان کی روشنی کی راہ بتائی. جب اصلی گناہ کی غلامی میں پیدا ہوا کرتے تھے تو اس نے نئی پیدائش کے غسل کے ذریعے انہیں لے پالک فرزندوں کا رتبہ بخشا. اس لیے دونوں جہانوں کے باشندے تیری حمد سرائی کرتے ہوئے تجھے سجدہ کرتے ہیں اور ہم بھی فرشتوں کے سارے لشکر کے ساتھ مل کر لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں قدوس قدوس قدوس. خداوند لشکروں کا خدا آسمان و زمین تیرے جلال سے معمور ہے. عالم بالا پر خوشانا. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. عالم بالا پر خوشانا. مہربان باپ تو واقعی قدوس ہے، تو پاک اور ہر پاک سے تجھ سے آتی. ہماری دعائیں قبول کر پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور مقرر ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون. اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی. اس نے شکر کیا، روٹی توڑ یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی، تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا. مسیح کے پاک بدن کو سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا، تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. میری یاد میں یہی کیا کرنا. مسیح کے پاک خون کو سجدہ کریں.
हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं और हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक तू न आए। और सब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे क्या मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्स की तासीर से आपस में करें। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ में रूहानी बाप पोपली हमारे तमाम बिशप साहबान और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हूँ और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्दो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में कुछ कादर मुतले खुदा बाप और रूह कुद्स की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शयान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ मांगे जो खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचाए, दिलों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत हमेशा तेरा है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पे नजर कर और इसे वो सलामत और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। जिंदा खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए हमें दूसरे की सलामती चाहिए। ऐ खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा जाता है, हमें सलामती अनायत कर। जिंदा खुदा का बरा जो जहान के गुनाहों को उठाने जाता है, मुबारक है वो जिस बरे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे आए, लेकिन सिर्फ कह के तू मेरे मुंह से शिफा पाए। उसका पाक बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। सूली
रहेगा, तेरा गिरना रहेगा, तेरा सूली उठा कर चलेगा। तेरा गिरना और सफर हमें याद रहेगा, तेरा सूली उठा कर चलेगा। तेरे प्यार की किरणें बिखरी, तेरे खून की बूंदें कब की। तेरे प्यार की किरणें बिखरी, तेरे खून की बूंदें कब की। तेरा सूली पे तेरा मरना, सूली पे तेरा मरना हमें याद रहेगा, तेरा गिरना और सफर, तेरा गिरना और सफर हमें याद रहेगा, तेरा सूली उठा कर चलना। कई मुर्दे तूने जलाए, कई लंगड़े तूने जलाए। कई मुर्दे तूने जलाए, कई लंगड़े तूने जलाए। लाज़र को जिंदा करना, लाज़र को जिंदा करना, लाज़र को जिंदा करना, लाज़र को जिंदा करना हमें याद रहेगा, तेरा गिरना और सफर। लहरों पे तेरा चलना, लहरों पे तेरा चलना, लहरों पे तेरा चलना, लहरों पे तेरा चलना हमें याद रहेगा, तेरा गिरना और सफर, तेरा गिरना और सफर हमें याद रहेगा, तेरा सूली उठा कर चलना। बैतुल मुक़द्दस शहर की मानंद पुख्ता इत्तेहाद से तामीर हुआ है। वहाँ कबीले यानी खुदावंद के कबीले खुदावंद के नाम का शुक्र करने जाते हैं। हम दुआ मांगे। रहीम खुदा, तो हर इंसान को जब वो इस दुनिया में आता है मुनव्वर करता है। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तो हमारे दिलों को भी अपने शानदार फजल से रोशन कर, ताकि हम हमेशा वही सोचें जो तू अजीम खुदा के नज़दीक पसंदीदा और मकबूल हो, और हम दिल की सच्चाई के साथ तुझे प्यार करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत अब से लेकर हमेशा तक आप सब पर, आपके खानदानों घरानों पे नाज़िल होती रहे। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती में रहें।